Hey guys, welcome back to my channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Varthan Classes. I have discussed many plays of Shakespeare. Now I am discussing about Macbeth by William Shakespeare. It's the shortest play of William Shakespeare. The play is so beautifully written by William Shakespeare, and all the characters are beautifully drawn by William Shakespeare. We can see many characters in William Shakespeare. I have uploaded. I am going to give you animated form so that the characters of every person can take their position in your mind. If we talk about the complete name of the play, the complete name of the play is The Tragedy of Macbeth. Okay, The Tragedy of Macbeth. It was first performed in 1606. Okay, it was performed in 1606, and the source is Raphael Holinshed's Chronicles. The source is Raphael Holinshed's Chronicles. The play indicates Shakespeare's great relation with King James I. Okay, if we talk about in 1600 in 1603, Queen Elizabeth got died. Okay, and when she died, then James I became the king, and King James and Shakespeare have a good relationship, and this play indicates their relationship. We can say Shakespeare Company Lord Chamberlain. Shakespeare's company name is Lord Chamberlain, that become to be known as Kingsman during the reign of James I. ओके, जो शेक्सपियर की कंपनी थी ना लॉर्ड चैम्बरलेन, वो अब क्या बन गई थी? किंग्समैन कंपनी बन गई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स वन, बिकॉज जेम्स वन वॉज द पैटर्न ऑफ किंग्समैन. जेम्स वन कौन थे? पैटर्न थे किंग्समैन के. ओके, now everyone believes that Macbeth is a play that shows Shakespeare's close relationship with James I. So that everyone thinks that हर एक को लगता था कि मैकबेथ जो प्ले है उसमें रिलेशनशिप दिखाया गया है. ये रिलेशनशिप क्या है? If we talk about Macbeth, the play Macbeth, it is called the cursed play. Okay, Macbeth is also called the cursed play. Cursed play कहा जाता है. Taking the name of the play resulted in accidents. Okay, so people call it the Scottish play. इसको क्योंकि जेम्स वन स्कॉटलैंड से थे ना, आपको पता है जेम्स वन के साथ रिलेशनशिप है, सो द पीपल कॉल इट द स्कॉटिश प्ले, इसलिए पीपल इसको स्कॉटिश प्ले कहते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द characters of the play, I am giving you the pictures one by one. Play's character. If we talk about King Duncan, he is Duncan. Okay, he is Duncan. Duncan, he is the present king of Scotland. In the play, he is the present king of Scotland, and his son Malcolm. His son is Malcolm and Donalbain. Okay, and Donalbain. Duncan, his two sons Malcolm and Donalbain. Okay, and there are three witches. These are the three witches. Okay, which make the prophecy. These are the three witches, and she is Hecate. Okay, Hecate, the leader of the witches. Okay, these are the characters. Now we discuss about the another character is Macbeth. Okay, he is Macbeth and she is Lady Macbeth. They are the main antagonist of the play. Okay, and now we are talking about the another character. He is Macduff, she is Lady Macduff, and his son, Macduff's son. Okay, they are the another characters of Scotland. Okay, Lennox, Ross, Menteith, Angus, Cathins. Okay, they are the Thanes of Scotland. Okay, these are the characters of Macbeth. Now we are moving to the story of the play. Important, which is Banquo. I have not uploaded a picture of Banquo.
Okay, he is Macbeth's friend. Okay, a general in the army ऑफ किंग डंकन की आर्मी में वो जनरल है और मैकबेथ के फ्रेंड है. वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द प्ले बाय एक्ट्स. ओके, एक्ट वाइज हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे. देयर आर 5 एक्ट्स इन द प्ले एंड वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. ओके, फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एक्ट वन. Discussing this act in Hindi and English both language. When the play begins, जब ये प्ले की स्टार्टिंग हो रही है, देखो ये 3 विचेस है ना जो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर इन थंडरस्टॉर्म. तूफान में वो एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं. दे वॉन्ट टू मीट मैकबेथ आफ्टर द बैटल. जो मैकबेथ है ना, जो किंग डंकन की आर्मी में है, वो उससे बात करना चाहती हैं. ओके, मैकबेथ एंड बैंको डिफीटेड स्कॉटिश रेबल्स. जो मैकबेथ और बैंको है, उन्होंने अभी जो स्कॉटिश के रेबल्स है, विद्रोही हैं, उनको मारा है. अभी अभी उनसे उन्होंने जीत प्राप्त की है. किंग डंकन इज सो हैप्पी दैट ही डिसाइड्स टू गिव द टाइटल ऑफ थेन ऑफ खाउडर टू मैकबेथ. अब किंग डंकन है जो, वो बहुत खुश है क्योंकि बैंको और मैकबेथ ने स्कॉटिश रेबल्स को मारा है और डिफीट किया है. तो किंग डंकन बहुत ज़्यादा खुश है. वो किंग जो मैकबेथ है ना, उसको थेन ऑफ काउडर का खिताब देना चाहता है. एंड बैंको आर हॉरिफाइड एट द साइट ऑफ द विचेस. उस टाइम पे जब वो आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनको विचेस दिखाई देती है. तो बैंको उन विचेस से डर जाता है. वो कहता है कि ये इंसान तो नहीं हो सकते, ये ऐसे देखने वाले इंसान तो नहीं हो सकते, ये जरूर कोई विचेस है. और बैंको डर जाता है. द विचेस कॉल मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस एंड थेन ऑफ काउडर. थेन ऑफ ग्लैमिस तो वो पहले है ही मैकबेथ, उसको अब वो क्या बोलती है, थेन ऑफ काउडर. ये उपाधि अभी इसको मिली नहीं है. मतलब मैकबेथ को ये नहीं पता कि मुझे किंग ने थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है. ये बात उन्होंने विचेस से ही पता लगती है, पर अभी मैकबेथ के पास ये खबर पहुंची नहीं है. मैकबेथ इज सरप्राइज एट द सेकंड टाइटल. मैकबेथ बहुत हैरान हो जाता है इस टाइटल से, बिकॉज ही हैडंट येट रिसीव द न्यूज़ दैट द किंग डंकर डिसाइडेड टू मेक हिम. पर उसको उनको अभी ये खबर भी नहीं मिली कि मुझे मतलब किंग बना दिया गया, थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है. द विचेस ऑल्सो कॉल दैट ही विल ऑल्सो बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. विचेस क्या करती है, उसके मन में लालच पैदा कर देती है. विचेस क्या है, ये लालच पैदा कर देती है कि तुम क्या बनोगे, एक दिन क्या बनोगे, किंग बनोगे स्कॉटलैंड के. ओके, तुम बनोगे किंग. द विचेस टर्न द अटेंशन टू बैंको. अब विचेस का ध्यान किसके पास आ जाता है, बैंको के पास आ जाता है. एंड टेल हिम दैट although he will never become the king of Scotland. वो उसे कहते हैं बेशक तुम कभी भी किंग नहीं बनोगे स्कॉटलैंड के, but his children and descendants will be the future king of Scotland. पर तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जो पूर्वज है, वो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी फ्यूचर किंग्स बनेंगी स्कॉटलैंड की. देन द विचेस वैनिश फ्रॉम द बैटल फील्ड. और इस बैटल फील्ड से अब जो विचेस हैं, जो हमारी ये प्रेत आत्माएं हैं, विचेस हैं, ये चली जाती हैं. ठीक है जी, ये आपको आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर तरीके से एक्ट समझ आए. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बोथ लैंग्वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली. अगर हम बात करें द टू स्कॉटिश जनरल रॉस एंड एंगस. मैंने अभी आपको स्कॉटिश जनरल की पिक्चर दिखाई थी. इसमें तो 2 जनरल आते हैं, रॉस एंड एंगस. वो मैकबेथ के पास आते हैं दैट द किंग डंकन हैज़ मेड हिम द थेन ऑफ काउडर. तो वो क्या कहते हैं, जो किंग डंकन है ना, उन्होंने उसको थेन ऑफ काउडर बना दिया है. मैकबेथ वंडर्स. मैकबेथ हैरान हो जाता है अबाउट द प्रोफेसी ऑफ द विचेस. विचेस की प्रोफेसी सुन के. बैंको सेड दैट द डेविल ऑफन टेल हाफ ट्रूथ टू हार्म ह्यूमन. पर बैंको अभी भी शंका में. बैंको कहता है कि जो विचेस होते हैं ना, ये डेविल्स होते हैं, ये कभी भी पूरा सच नहीं बताते, ये हाफ सच बताते हैं. किंग डंकन प्रेजेज मैकबेथ. किंग डंकन मैकबेथ की बहुत तारीफ करता है. द किंग डिक्लेयर दैट हिज सन मेलकम विल बी द फ्यूचर किंग. अब किंग उस टाइम पे फिर क्या अनाउंस कर देता है, भी उसका बेटा है ना जो ये मेलकम, वो अब नेक्स्ट किंग बन जाएगा. ओके, और उसके बाद क्या होता है, किंग डंकन सेज दैट ही विल विजिट मैकबेथ कासल फॉर द डिनर इन द इवनिंग. अब किंग डंकन मैकबेथ को क्या कहता है कि मैं तुम्हारी कासल में आऊँगा डिनर के लिए इवनिंग के टाइम पे. नाउ व्हेन लेडी मैकबेथ लर्न्स अबाउट द प्रोफेसी ऑफ द विचेस. अब देखो, अब स्टोरी घूम गई है.
अब स्टोरी घूम गई है, देखो अब पता लग गया लेडी मैकबेथ को। अब लेडीज़ हैं, लेडीज़ का दिमाग तो वैसे भी, मैं भी लेडी हूँ पर थोड़ा सा जस्ट है, थोड़ा सा मतलब वो क्या करती है देखो, लेडी मैकबेथ को अब पता लग जाता है भी प्रोफेसी के बारे में भी, जो भी प्रोफेसी हुई विचेस के बारे में वो बहुत सोचती है। शी डिसाइड्स टू कन्विंस हर हस्बैंड टू डू एनीथिंग। वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करती है भी कुछ भी करो, कुछ भी करो, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम ए किंग, कुछ भी करो किंग बनने के लिए जो हो सकता है। शी प्लॉट्स विद हर हस्बैंड टू किल किंग डंकन। वो एक प्लॉट तैयार करती है अपने हस्बैंड के साथ किंग डंकन को मारने के लिए। शी टेल्स मैकबेथ द प्लान। वो मैकबेथ को प्लान बताती है, देखो वो मैकबेथ को प्लान बता रही है। ओके, वाइल द किंग स्लीप्स, जब राजा सोएगा, शी विल गिव वाइन टू द सर्वेंट टू मेक देम ड्रिंक। वो क्या करेगी जब राजा सो जाएगा, वो सर्वेंट्स को क्या कर देगी, ड्रिंक दे देगी, ताकि वो क्या कर जाएं, वो भी बेहोश हो जाएं। ओके, वो ये प्लान तैयार कर। देन शी एंड मैकबेथ विल स्लीप इन एंड मर्डर द किंग। अब वो क्या करेंगे, वो अंदर आएंगे और किंग डंकन का मर्डर कर देंगे, और जो बेहोश सर्वेंट्स हैं उन पर इल्ज़ाम लग जाएगा। ये इनका स्टोरी प्लॉट है। ओके, देन दे विल स्मीयर द ब्लड ऑफ द किंग ऑन द स्लीपिंग सर्वेंट। उसके बाद वो क्या कर देंगे, जो ब्लड है उसको स्लीपिंग सर्वेंट्स के ऊपर गिरा देंगे, सो दैट इट लुक सर्वेंट हैव मर्डर द किंग। इससे क्या नजर आए भी जो सर्वेंट है उन्होंने किसको मारा है, किंग को मारा है। मैकबेथ लाइक्स द प्लान एंड एग्रीज टू मर्डर किंग डंकन। मैकबेथ भी एग्रीज हो जाता है प्लान के साथ और मर्डर करने के बारे में सोच लेता है। यहाँ पे देखो ये प्लानिंग ही चल रही है, अभी मर्डर नहीं हुआ है। ये एक्ट वन का प्ले आपका ख़त्म हो गया, अब एक्ट शुरू हो रहा है सेकंड। ओके, सेकंड एक्ट में हम बताते हैं मैकबेथ किल्स किंग डंकन। सेकंड एक्ट में मैकबेथ किंग डंकन को मार देता है। हिज हैंड्स आर कवर्ड इन ब्लड, उसके हाथ में ब्लड भर जाता है। लेडी मैकबेथ टेक्स द डैगर इनटू द रूम एंड कीप इट विद द स्लीपिंग सर्वेंट। जिस हथियार से मैकबेथ डंकन को मारा गया है, लेडी मैकबेथ उसे लेती है और उसको स्लीपिंग सर्वेंट्स के पास रख देती है। हर हैंड्स आर ऑल्सो कवर्ड विद ब्लड, उसका भी हैंड्स क्या है, खून से भरे पड़े हैं। दे ट्राई टू वॉश दैम विद वाटर, वो उसको वॉश करने की कोशिश करते हैं पानी से। लेटर मैकबेथ मीट्स मैकडफ। अब स्टोरी घूम रही है। अब स्टोरी घूम रही है। इसमें क्या होता है, जो लेटर है ना, जो मैकबेथ है वो मैकडफ से मिलता है। ओके, मैकडफ डिस्कवर्स द डेड बॉडी ऑफ किंग डंकन। मैकडफ को किंग डंकन की डेड बॉडी मिलती है। मैकडफ इज सस्पिशियस ऑफ किंग डंकन्स मर्डर। मैकडफ को बहुत, ये मैकडफ है ना, इसको बहुत हैरानी हो रही है अभी, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है, सस्पिशियस शंका में है ये सोच रहा है क्या हो गया है ये। ओके, और वो क्या कर रहा है, सस्पिशियस है मर्डर, दैट एवरी वन बिलीव्स दैट द सर्वेंट कमिटेड। सब कोई कह रहे हैं भी सर्वेंट्स ने मारा है, सर्वेंट्स ने मारा, पर मैकडफ को है कंफ्यूजन, नहीं ये नहीं हो सकता। वेयर एज किंग डंकन सन मेलकम एंड डोनाल्बन। अब जो किंग डंकन के बेटे थे ना, मेलकम और डोनाल्बन, मेलकम को जिसने किंग बनाने के लिए राजा ने कहा था, वो फ्ली कर जाते हैं फ्रॉम द स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं। एज दे फील दैट दे आर इन डेंजर, उनको लगता है भी हमें भी खतरा है जब हमारे फादर की डेथ हो गई है तो। नाउ एज देर इज नो हायर, मैकबेथ बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब कोई हायर ही नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो मैकबेथ को क्या बना दिया जाता है, किंग बना दिया जाता है। यहाँ पे एक्ट सेकंड भी खत्म हो गया। अब हम बात करें एक्ट थर्ड की। आफ्टर बिकमिंग द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैकबेथ अलॉन्ग विद लेडी मैकडफ। उसके बाद मैकबेथ जब बन जाता है, किंग बन जाता है स्कॉटलैंड का, मैकबेथ अलॉन्ग विद लेडी मैकबेथ, जो मैकबेथ है वो अपनी वाइफ के साथ इनवाइट्स बैंको टू अटेंड द फीस्ट। बैंको को बुलाता है कि तुम भी पार्टी में आओ दैट नाइट। मैकबेथ अरेंजेस मर्डर। अब देखो मैकबेथ क्या है, बैंको को क्यों बुला रहा है, क्यों का बुलाना चाह रहा है दोनों, उसको पता है भी जो विचेस ने क्या प्रोफेसी की थी भी, उसकी जो पीढ़ियां हैं वो क्या बनेगी,
आने वाले किंग बनेंगे, तो वो उनको मर्डर करने के बारे में सोचता है। उसमें क्या होता है, मर्डर टू किल बैंको, बैंको को मारने की प्लानिंग करता है, एंड हिज सन फ्लिंस, और उसका सन है जो फ्लिंस उसको मारने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या होता है, देखो बैंको इज किल्ड, बैंको तो मारा जाता है, बट फ्लिंस एस्केप्स, पर फ्लिंस भाग जाता है। व्हेन मैकबेथ गोज टू अटेंड द फीस्ट, जब मैकबेथ फीस्ट अब पार्टी में जा रहा है मारने के बाद, ही सीज बैंकोज घोस्ट। किंग, देखो शेक्सपियर के प्ले में घोस्ट वगैरह ये तो आम है। वो देखता है बैंको का घोस्ट है सीटिंग ऑन द चेयर, चेयर पे बैठा है। हॉरिफाइड मैकबेथ स्लीप स्पीक्स टू द घोस्ट, डरा हुआ मैकबेथ भूत से बातें कर रहा है। हु इज इनविजिबल टू द रेस्ट ऑफ पीपल, जो और किसी को नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ मैकबेथ को दिखाई दे रहा है। लेडी मैकबेथ मेक्स एक्सक्यूजेज फॉर हर हस्बैंड एब्सर्ड बिहेवियर, लेडी मैकबेथ अपने एक्सक्यूज बहाने बना रही है, लोगों को कह रही है नहीं नहीं ये तो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, मतलब कुछ भी, ताकि लोगों को कोई शक ना हो। उसके बाद मैकबेथ डिसाइड करता है कि वो अब जाएगा विचेस के पास, फिर जाएगा और पूछेगा भी क्या फ्यूचर होगा इसके बाद मेरा। द थ्री विचेस मीट हिकेट, अब थ्री विचेस जाके हिकेट को मिलती है, द क्वीन ऑफ विचेस, जो विचेस में क्वीन है। हु स्कोर्ड देम फॉर इंटरफियरिंग मैकबेथ लाइफ, जो हिकेट है वो जो विचेस है उनको डांटती है, अभी तुमने मैकबेथ की लाइफ में क्यों इंटरफियर किया। लेटर हिकेट टेल्स विचेस टू गिव मैकबेथ ए फाइन सेंस ऑफ सिक्योरिटी व्हेन ही विजिट्स, उसके बाद मैकबेथ जो हिकेट है वो विचेस को कहती है तुम फाल्स, मतलब फाल्स सेंस दे देना, गलत बता देना जो भी आप पूछे, मतलब उसको सही बताना नहीं चाहते। ये स्टोरी यहाँ पे घूम रही है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, चलो ये विचिस के पास जाएगा, अभी गया नहीं है, विचिस के पास जाएगा, वहाँ पे एक्ट थर्ड खत्म हो जाता है। उसके बाद एक्ट फोर्थ की बारी आ रही है। एक्ट फोर्थ में क्या है, मैकबेथ मीट्स थ्री विचेस अगेन में क्या है, देखो मैकबेथ है ना, जो थ्री विचेस को दोबारा मिलता है। ओके, द विचेस टेल मैकबेथ टू बी केयरफुल ऑफ मैकडफ, विचेस उसको कहती है कि तुम मैकडफ से बच के रहना। ओके, उसके बाद वो प्रेडिक्शन क्या करते हैं कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, वो इंसान तो मार ही नहीं सकता जिसका जन्म औरत के वॉम से हुआ है। ओके, औरत के गर्भ से हुआ है। और उसके बाद अगर हम कहें, उसको ये भी कहते हैं, उसके बाद ये भी कहा जाता है भी तब तक तुम्हारी डेथ नहीं होगी जब तक बिरनम वुड्स तुम्हारे पास खुद चल चल के नहीं आएंगे, डंसीनेन में खुद डंसीनेन हिल से नहीं चल कर आएंगे तब तक। मैकबेथ सेंड्स मर्डर टू किल मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब क्या होता है, मैकबेथ है जो, अब क्या कर रहे हैं मैकबेथ जो है, मैकबेथ क्या करता है, मैकडफ की वाइफ और उसका बेटा है ना, जो मैकडफ का बेटा, उनको मारने के लिए क्या भेज देता है, मर्डरर्स भेज देता है। मैकडफ ज्वाइंस हैंड्स विद मेलकम, मैकबेथ मेलकम के साथ हाथ मिला लेता है। दे अरेंज एन आर्मी ऑफ 10,000 सोल्जर, उसके बाद वो 10,000 सोल्जर्स की आर्मी तैयार कर देते हैं। एक्ट फोर्थ आ गया, फिफ्थ, हाँ फोर्थ आ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फिफ्थ में आ रहे हैं। लेडी मैकबेथ इज सफरिंग फ्रॉम स्लीप वॉकिंग, अब लेडी मैकबेथ का हाल दिखाया गया है, जो लेडी मैकबेथ है आया गया है। अब वो पागल होने के कगार पर आ रही है, नींद में चल रही है। शी कैन सी ब्लड ऑन, अपने हाथों में ब्लड देख रही है, वाटर से वॉश कर रही है, वॉश नहीं हो रहा, उसको यही दिख रहा है, मैडनेस में पागलों की तरफ फिर बिल्कुल घूम रही है। गिल्ट उसको फील हो रहा है। लेटर शी किल्स हरसेल्फ, अपने आप को मार लेती है। बिफोर द बैटल बिगिंस, बैटल शुरू होने से पहले ही। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मेलकम टेल्स द सोल्जर टू कट डाउन ए ट्री ऑफ बिरनम फॉरेस्ट, उसके बाद मेलकम क्या कहता है सोल्जर्स को कि तुम बिरनम फॉरेस्ट के ना ट्रीज को कट लो और अपने अपने मतलब कट कर लो और अपने आगे लगा लो, और फिर मार्च करो डंसीलेन कासल की तरफ। मैकबेथ लर्न्स दैट द ट्रीज ऑफ बिरनम वुड आर वॉकिंग टुवर्ड डंसीलेन, मैकबेथ को अब पता लग गया भी जो ट्रीज हैं बिरनम वुड के, वो उसकी तरफ डंसीलेन की तरफ बढ़ रहे हैं। ही इज हॉरिफाइड एज ही रिकॉल्स द प्रोफेसी ऑफ द विचेस, वो डर जाता है क्योंकि उसको प्रोफेसी याद आ जाती है भी क्या प्रोफेसी हुई थी। बैटल होता है मैकडफ और मैकबेथ के बीच में। मैकबेथ टेल्स मैकडफ दैट नो मैन बोर्न ऑफ ए वुमन कैन किल हिम, अब मैकबेथ उसके अगर मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मुझे कोई वुमन से पैदा हुआ औरत से पैदा हुआ बच्चा मार नहीं सकता। उसके बाद मैकडफ उसे कहता है हाँ कोई नहीं मार सकता, पर मैं एक रिप्ड ऑफ चिल्ड्रन हूँ, मैं सीधे गर्भ से पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं सी सेक्शन पर से पैदा हुआ हूँ, यानी सिजेरियन से हुआ हूँ। उसने तो चलो ये ऐसे नहीं करा गया, पर वो सीधा सही वुमेन वोम से नहीं हुआ था। मैकबेथ इज हॉरिफाइड बट डज नॉट सरेंडर, मैकबेथ घबरा जाता है पर फिर भी वो सरेंडर नहीं करता। मैकडफ बिहीड्स
मैकबेथ को मार देता है। मेलकम बिकम्स द न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मेलकम स्कॉटलैंड का किंग बन जाता है। लेटर इन हिस्ट्री बेंगोज डिसेंसर बिकम किंग, अगर हिस्ट्री में भी बात करें तो बैंकों के डिसेंडर्स जो हैं वो किंग बने हैं। इनफैक्ट किंग जेम्स वन वाज बिलीव टू बी ए डिसेंडेंट ऑफ बैंको, यहाँ तक हिस्ट्री में ये भी बिलीव किया जाता है जो किंग जेम्स वन है वो भी डिसेंडेंट माना जाता है किसका, बैंको के। ये बहुत अच्छा प्ले था, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। मेरी कोशिशें आपको कैसी लग रही हैं प्लीज़ मुझे बताते रहना। कोई भी कमी है, किसी भी प्रकार का सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। किसी राइटर पे आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई प्ले आपको नहीं समझ आ सक रहा उस पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।